السلام علیکم میڈم فضا. السلام علیکم حاضرین. فیئر ٹیکس مانیٹر FTM لانچ میں آپ سب کو آکسفیم اور انڈس کنسورشیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس لانچ میں آپ سب کو فارمل ویلکم کرنے کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کرتی ہوں انڈس کنسورشیم کے CEO محترم حسین جربار صاحب سے کہ وہ آپ سب کو فارملی ویلکم کریں. حسین جربار صاحب. بہت شکریہ فضا. سب سے پہلے میں آکسفیم ان پاکستان اور انڈس کنسورشیم کی طرف سے ہمارے جتنے بھی ممبرس نے ابھی تک ہمیں جوائن کیا ہے اور باقی لوگ جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کو آج کی اس لانچ میں جو ہے وہ ویلکم کرتا ہوں. اور ہمارا ٹیکس جسٹس کولیشن، ہماری بلاگرس جتنی بھی ہماری پوری ٹیم پورے پاکستان سے فائنانس فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہے. آپ لوگوں کی ایک بہت ہی بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے جو کہ پروجیکٹ کے ہم نے مقاصد کو حاصل کیا ہے. اس میں سے ہر ایک ساتھی اور ہر ایک آرگنائزیشن کی اپنی ایک لانگ ایسوسیشن بھی ہے پچھلے 5 سالوں سے، اور ان کے ساتھ آپ کی ایک کمٹمنٹ اور آپ کی پوری جو ایفرٹس ہیں وہ ہیں. تو ہم اس کو ویلیو کرتے ہیں اس ایفرٹ کو. مختلف جو ہم نے نالج پروڈکٹس اب تک پاکستان میں بنائے تھے ان کے ہم نے لانچ کیے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہم ایک اور نالج پروڈکٹ جیسا کہ فضا نے بتایا فیئر ٹیکس مانیٹر کا جو ٹول ہے اس کی جو رپورٹ ڈیولپ ہوئی ہے اس کی ہم لانچ کر رہے ہیں. تو فیئر ٹیکس مانیٹر ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اور وہ جو ٹیکس کا نظام کام کر رہا ہے وہ بیسیکلی مختلف جو شہریوں کے مختلف گروپس ہیں یا طبقات ہیں ان کے کیا اثرات جو ہے نا ان پہ ہو رہے ہیں. خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں، پھر جو بزنس کمیونٹی ہے یا مختلف جو لوگ ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ فائنانس فار ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے وہ 2015 سے لے کے 20 تک ہے. تو آج کی رپورٹ مورلیس آپ سمجھیں کہ ان تمام ایئرس کو کور کر رہی ہے. تو پہلی جو رپورٹ تھی وہ 2015-16 کی جو ہے میں ہم نے بنائی تھی، اور اس کے بعد 2019 اور 20 میں اس رپورٹ کو جو ہے وہ فردر دیکھا گیا، جو چینجنگ آئی تھی اس کی روشنی میں، اور اس کو اپڈیٹ کیا. تو وہ پوری جو رپورٹ ہے اس کی ہم لانچ کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے جو ایفرٹ کی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. میرے خیال میں اس میں تھوڑی سی آپ تمام ساتھیوں کو اگر میں تھوڑا پیچھے لے جاؤں تو ہم نے جب کام سٹارٹ کیا تھا تو ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے پاکستان میں ریگریسو ٹیکس کا نظام ہے، اس کی جگہ پہ پروگریسو نظام آنا چاہیے. ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں وہ کم ہونی چاہیے، اور ڈائریکٹ ٹیکس نیٹ میں لوگ جو کہ آتے ہیں ان کو شامل کرنا چاہیے. ویلتھ پہ ٹیکس لگنا چاہیے. یہ چیدہ ہماری ڈیمانڈز تھی جس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا. اس کام کو، اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پھر مختلف لوگوں کے ساتھ انگیج ہوئے. جیسے ٹیکس جسٹس کولیشن بنایا تو وہ سول سوسائٹی کا ایک ریپریزنٹیٹیو الائنس تھا جس میں پورے پاکستان سے 50 آرگنائزیشنز یا تنظیمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل تھیں، جس میں خاص طور پہ اویئرنیس کا کام جو ہے وہ انہوں نے کیا. کیونکہ ٹیکس ایک نیا سبجیکٹ تھا تو پاکستان کے شہریوں کو اس کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی کہ وہ ان کی زندگیوں پہ کیسے اثر کرتا ہے. تو ٹیکس جسٹس کولیشن کے ذریعے ہم نے سیشنز کنڈکٹ کیے، پھر انہوں نے جا کے کمیونٹیز کے سیشن کنڈکٹ کیے. ساتھ میں پھر ہم نے 2018 کی الیکشن میں ٹیکس جسٹس کولیشن نے بڑے سکسیسفلی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج ہوئے، اور جو 2-3 مین مقاصد تھے کہ ہیلتھ کو اور سوشل پروٹیکشن کو جو ہے نا وہ شامل کیا جائے، اور پروگریسو جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو ایجنڈا پہ لایا جائے. تو ٹیکس جسٹس کولیشن کی سکسیسفل انگیجمنٹ سے وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوئے. آگے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد صحت پر عین علاج کمپین آپ نے 2019 میں رن کی، جس میں پاکستان میں جو ادویات پہ
की जो कीमत जो थी वो बढ़ गई थी और वो गैर कानूनी इजाफा था जो कि कंपनीज ने किया, उस पे आप लोगों ने बड़ी सक्सेसफुल कैंपेन जो है वो रन की और जिसके नतीजे में उसका नोटिस भी लिया गया और कीमतों को कम करने के लिए गवर्नमेंट की सतह पे कोशिशें भी हुई, कमेटीज बनी। 2020 में आप तमाम साथियों ने कोविड को भी के रिस्पांस को भी आपने किया और उसके बाद आपने जाके पब्लिक फोरम्स किए जिसमें पाकिस्तान पे जो आईएफआईज के कर्जे हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी आपने एक बड़ी अच्छी जो है वो मुहिम चलाई। तो इसके साथ इस काम में जो कि अभी पेश करेंगे आपके सामने, उसमें हमने फिर रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी इस काम में शामिल किया गया। पिप्स जो कि गवर्नमेंट का इदारा है जो पार्लियामेंटेरियन की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है, उसको भी इंगेज किया ताकि हम पॉलिसी कॉरिडोर में जो है वो ड्रेन डाल सकें सिटीजन्स के पर्सपेक्टिव से, वो भी सक्सेसफुल हुआ। और उसके अलावा रिसर्च या नॉलेज प्रोडक्शन में जो बड़े रिसर्च के इदारे हैं उनका और सिविल सोसाइटी का जो गैप होता है उसको कम करने के लिए हमने लम्स को, जो कि एक बड़ा प्रेस्टीज एक इदारा है हमारे मुल्क में, उसको भी शामिल किया और उसने बड़ी अच्छी नॉलेज प्रोडक्ट्स हमें बना के दी, जिसको भी हमने जो है वो लॉन्च किया। उसके अलावा ये है कि हमने फाइट इनइक्वालिटी यूथ अलायंस, अपने नौजवानों को भी इस काम में शामिल किया और यूथ को फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए भी हमने एंगेज किया ताकि टैक्स का जो हमारा एजेंडा है उसके हवाले से हमारे यूथ अपना पर्सपेक्टिव जो है वो दे सकें और उनमें अवेयरनेस आ सके। तो तमाम, उसके अलावा जर्नलिस्ट और हमारे जो व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स हैं उनको भी हमने एंगेज किया। तो एक मल्टी डायमेंशनल हमने अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की और तमाम लोगों को साथ में शामिल किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपने देखा कि एक बड़ी सक्सेस और कामयाबी ये हुई कि जो हमारी डिमांड्स थी उसमें से एक पायलट फेज में हमें ये कामयाबी हासिल की कि इस्लामाबाद में जो जीएसटी टैक्स है वो 17.5 से रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में 7.5% पे जो है ना वो लाया गया, जो कि आप ये पूरे 5 साल हमारी जो जर्नी थी उसकी जो हमारी सक्सेस है वो एक पॉलिसी चेंज में नजर आई। फिर यह है कि टैक्स का एजेंडा मुस्तकिल तौर पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन गया, ये भी हमारी सक्सेस थी। बजट एडवोकेसी भी की। तो ये सारी 5 सालों की एक जर्नी है जो कि जिनमें मुख्तलिफ जो साथियों की, हर एक की जो मैंने पहले कहा कंट्रीब्यूशन है। तो ये छोटी सा मैंने एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बता दी कि हमने कहाँ से काम शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचे। तो एक दफा मैं फिर आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और थैंक यू वेरी मच हुसैन साहब फॉर गिविंग द डिटेल्ड ओवरव्यू कि फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट रहा उसमें 5 साल कितना इंटेंसिवली काम हुआ, और हुसैन साहब ने उन सारी कैंपेन्स का भी जिक्र किया, एन इलाज कैंपेन और रिसेंट जो अभी कैंपेन चली है ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, और इस प्रोजेक्ट ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। सेल्स टैक्स के हवाले से हुसैन साहब ने बताया कि हमारी बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं। तो ये एक मार्क्स हैं जो कि टैक्स जस्टिस कोलिजन और आप सब लोगों ने मिलकर जो है ये आपकी काविशें हैं जिसका कि एक नतीजा नजर आ रहा है। फेयर टैक्स मॉनिटर के हवाले से भी हुसैन साहब ने बात की कि फेयर टैक्स मॉनिटर जो है एक मॉनिटरिंग का, एक अवामी मॉनिटरिंग का एक टूल है। इस पर मजीद जो है वो मैं अब गुजारिश करती हूँ मोहतरम आसिम जाफरी साहब जो कि फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट ऑक्सफेम के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कि वो बताएं आप सबको कि ये फेयर टैक्स मॉनिटर जो है किन इंडिकेटर्स पर काम करता है और पिछले 2 सालों के जो इंडिकेटर्स सिलेक्ट किए गए उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। तो ओवर टू आसिम जाफरी साहब सर।
मैडम आसिम साहब की माइक ऑफ है, आवाज नहीं आ रही। जी अब हो गया, अब बात है जी आप स्क्रीन शेयर है। जी स्क्रीन शेयर है। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Tax Justice Coalition Pakistan, Fight Inequality Youth Alliance, Social Influencers की टीम कि आपने अपना वक्त निकाला और आज इस हमारे जो फेयर टैक्स मॉनिटर के लॉन्च में शामिल हुए। मॉनिटर का थोड़ा तारुफ बयान करता चलूं कि ओवरऑल हमारी जो ग्रोथ है अपने एविडेंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये लेगेसी वर्क हमारा डावोस की एनुअल रिपोर्ट से कंटिन्यू होता है और कमिटमेंट फॉर रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इंडेक्स से जा जुड़ता है। इसी अरसे में एक हमारा इंट्रोड्यूस्ड टूल है फेयर टैक्स मॉनिटर, जो 2015 में फेयर टैक्स मॉनिटर के नाम से इंडेक्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इंडेक्स इनिशियली इस तरह से कवर करता था कि नेशनल लेवल पे हम जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसको देख सकें कि उसका जाविया क्या है, और इसके साथ रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो एग्जेम्पशंस के एस्पेक्ट में, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के एस्पेक्ट में एंड अदर एरियाज में किस तरह से परफॉर्म करती है। साइमल्टेनियसली बजट का दूसरा एंगल कि स्पेंडिंग का पैटर्न क्या है, और स्पेंडिंग के अगर हम जूम इन करें तो जूम इन में हमारे पास 3 पब्लिक सर्विसेज आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन। तो ये इंडेक्स जो है वो हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से कंट्री लेवल पे पॉलिसी की रिकमेंडेशंस में जो इन्वेस्टेड एफर्ट्स हैं स्टेट की वो कितनी प्रोग्रेसिव है, या उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो प्रो पुअर हैं या प्रो रिच हैं, क्या उनके सम्राट जो हैं वो ट्रिकल डाउन होकर सोसाइटी को इक्वल सोसाइटी की जर्नी पे लेके जा रहे हैं क्या नहीं। तो टैक्स जस्टिस कोएलिशन पाकिस्तान जो एक ऐसा अलायंस है कि जो इसकी डिबेट को सिंस 2015 एक नेशनल डिस्कोर्स में कन्वर्ट कर चुका है। इसी तरह से हमारे ग्लोबल अलायंस फाइट इनइक्वालिटी अलायंस ग्लोबल और इसके साथ टैक्स जस्टिस नेटवर्क अफ्रीका इसकी एक ऐसी तामीर करते हैं ग्लोबल नैरेटिव की कि जो नेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज होती हैं और ग्लोबल स्फीयर में जहां उनका मुकाबला IFIs के नैरेटिव से होता है वहां भी कंट्रीब्यूटिव एविडेंस के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो इंडेक्स है इसमें जो कलीदी किरदार अदा किया वो ऑक्सफैम की टीम जिसमें फ्रांसिस हैं जो इस वक्त एडवाइजर टू नेदरलैंड गवर्नमेंट है ऑन इकोनॉमिक अफेयर, वो शामिल थे। टैक्स जस्टिस नेटवर्क अफ्रीका की जो की टीम है वो लोग इसकी जो कंस्ट्रक्ट है उस पे शामिल थे। इसकी कंस्ट्रक्शन की जो जर्नी है उसमें सेवरल कंट्रीज जो कि फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट की
टीम है नेशनल लेवल पे वो भी इन्वॉल्व रहे, कि इकोनॉमिक मैनेजर्स भी इन्वॉल्व रहे, टैक्स के एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व रहे। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट का एक नतीजा था कि हम इस इंडेक्स के रिसर्च मेथडोलॉजी को इवॉल्व कर सके। एंड थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम हम इन इंडिकेटर्स को डिफरेंट कंट्रीज में टेस्ट करते रहे। नो डाउट ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ना सिर्फ पॉलिसी लेवल पे एक स्टेट को, चाहे उसका स्फेयर इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, फाइनेंस से हो, अकाउंटिंग से हो, और अदर एंड पे पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में हो, तो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक न्यू एविडेंसेस का एक बेहतरीन इम्तजाज जो करंट प्रैक्टिस और आइडियलिज्म के दरमियान में कहीं फॉल करता है वो भी पेश करता है। अब जो है ये जो हमने फेयर टैक्स मॉनिटर 2018 में 18-19 को हमने रीअसेस किया। फर्स्ट स्टडी हमारी 15 और 16 में आई, और रीअसेस में हमने देखा कि हमारी जो जर्नी है टुवर्ड्स प्रो पुअर पॉलिसीज, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वो कितनी ही कारफरमा रही। इसमें हमारे साथ रिव्यूअर्स जो थे वो हेनरिक थे फ्रॉम नीदरलैंड, और ओली जो है वो ऑक्सफोर्ड से थे, जिन्होंने इस इंडेक्स को रिव्यू किया और हमारी फाइंडिंग को इंडोर्स किया। तो इसके बारे में मैं अगली स्लाइड्स में आपको इसके इंडिकेटर्स पे रोशनी डालता हूँ। कुछ इसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि पाकिस्तान के पास 3 एपिसोड्स में ग्रोथ एक्सेलरेशन रही है। अब ग्रोथ एक्सेलरेशन सिंस 1960 से हम देखें तो जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 3% पर एनम एक्सीड किया है। वो 63 से 66 है, और 1980 से 83 है, और 2004 के दरमियान। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें जीडीपी पर एनम पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ 6 to 7% इन 1960 और 2000 में लेस देन 3%। इसमें जो हमारे स्ट्रक्चरल एरियाज जो हैं उसको डिटेरियोरेट किया है। उसमें रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह कलेक्ट करें, हेल्थ जीम है वो पॉवर्टी और नहीं। अब आवाज आ रही है फिर तो थ्रू आउट म्यूट रहा है।
ओके, तो हमारी जो रिसर्च है फेयर टैक्स इंडेक्स की, उसमें जो 2015 और 16 का जो इंडेक्स है वो 16 कैटेगरीज पे हमने उसकी रीअसेसमेंट की है, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट जो इंडिकेटर्स है उसकी जो बैकग्राउंड है वो यूं है, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम। पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम हाईली रिग्रेसिव है। मीनिंग ये है कि हम जो हैं जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो इन है, उसका 1 लीटर पे तकरीबन कोई 32 रुपए आप टैक्स अदा करते हैं। वो एक रिच आदमी अपनी गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाते वक्त वो टैक्स अदा कर रहे हैं, और एक मोटर बाइक वाला शख्स जो उसकी आमदन में भी डेली वेजेस पे हो या वो मिनिमम वेज कैटेगरी में आते हो या वो उससे लेस देन हो, उसका जो टैक्स का इंसिडेंस है वो भी 32 रुपए उसी तरह से पे कर रहा है जिस तरह के एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में डलवाते हुए कर रहा है। तो जिसका टैक्स का जो ये जाविया है, जो अमीर और गरीब का जो फर्क है उसको माइनस कर देता है, तो जो टैक्सेस हैं हमारे टोटल वो तकरीबन इसी अंदाज से कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे उसकी शक्ल टेलीफोन के बिल्स के सूरत में हो, बिजली के बिलों में हो, मोटरसाइकिल के पेट्रोल में डलवाते वक्त हो, या टेलीविजन फी अदा करते वक्त टैक्स हो। तो ये रिग्रेसिव टैक्सेशन का इंसिडेंस कंटिन्यू रहता है। इसी तरह से 2013, 14 और 16, 17 में हमने देखा कि ये इंक्रीज जो है वो 48% से अब 91% हो गई है। इसी तरह से टैक्स ऑन द पुअर जो सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ है, वो 18% से 35%। इसी तरह से जो स्टैट्यूटरी जीएसटी का रेट है वो 17% है, लेकिन उसकी जो कलेक्शन है जिस पे हमारी कैंपेन भी काम करती रही, मेकिंग द पाकिस्तान टैक्स फेयर, वो एक्चुअली 3.9% है।
جی ویورز میرے خیال میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ عاصم صاحب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں. جو باقی پارٹیسپینٹس ہیں تو ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے مائکس میوٹ رکھیں اور تاکہ پھر جو ہے وہ شکریہ مختار عباسی صاحب. جی شارٹلی عاصم صاحب جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سوری فار دس انٹرپشن. جی حاضرین عاصم صاحب نے جوائن کر لیا ہے. ہیلو عاصم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا میں ذکر کر رہا تھا پاکستان کے ٹیکس سسٹم پہ کہ ہمارے جو ٹیکس سسٹم کے اندر ٹیکس ایگزمپشنز اور کنسیشنز کا جو رجیم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. جیسے آج ہی پی ٹی آئی آواز آ رہی پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی ہے آپ کا ہے. جی عاصم آپ اپنی کیمرہ بھی آن کریں. نہیں تھوڑا سا سامنے آئے نا تو دیکھیں. جی عاصم. جی 5 منٹ